Hello, good afternoon, FIBCom students. Today I am going to start chapter number 3, unit number 3, tourism. Now we will discuss more about tourism. That tourism, ये word हम it is related to tourism places, tourist places. We would like to go outside within the 1 year. ओके, तो हमें कहीं ना कहीं जाना पसंद होता है, या साल में एक बार या एक दो बार हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, या नहीं भी जाते थे लेकिन हम अपने रिश्तेदार के पास जरूर जाते हैं. सो इट इज़ for that relaxation, it is out of that schedule, it is out of what we can for work also, कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए अभी हम उसके बारे में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं. Economic, geographical, and social study include the study of all these factors which affect the economy, nature, and mankind respectively. Various sectors like banking, research, education, and many more played a vital role in the development of the mankind and countries. A sector which is recently recognized is the tourism sector. Though tourism sector is only about exploring the new places and rejuvenation, in the true sense, it is a lot more. It has the potential to develop country by contributing economically and socially to the country and serve the mankind by offering facilities of leisure, pleasure, recreation and vacation. तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि रिसर्च हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल और सोशल स्टडी, इसमें ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है जो टूरिज्म सेक्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि यहाँ पे आगे बात करें कि टूरिज्म हम क्यों पसंद करते हैं, तो टूरिज्म हमें क्या देता है. तो टूरिज्म हमको लेजर देता है, प्लेजर देता है, रिक्रिएशन देता है और वकेशन देता है, जिसके तौर पे या जिसके बेस पे हमें जो टूरिज्म है वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड रहता है. और बोलते हैं, हम बोलते कि टोपोग्राफी है, या हम बोलते कि जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं. तो आगे हम बात करने वाले हैं. However, the tourism is largely based on the geographical factors, as geographical factors provide resources for tourism like topography, natural beauty, culture and tradition, and lot more. Hence, it is a forms an important component of geographical studies. On the other hand, it is highly labor-intensive industries. This makes the tourism important in the social and economic studies too. तो सोशल लाइफ के लिए और हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्टडीज के लिए टूरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. अभी हम टूरिज्म की डेफिनेशन देखने वाले हैं. टूरिज्म मतलब क्या है, सही में टूरिज्म का मतलब क्या है. The Theobald suggested that etymologically, the Theobald suggested that etymologically the word tour is derived from the Latin word torna and the Greek word tornos, which means the lake or the circle. In the simple words, it means to move around the central point or axis. तो यहाँ पे थियोबाल्ड हैं, उन्होंने एक वर्ड, उन्होंने ये उनका मीनिंग दिया है टूरिज्म का. तो टूर ये जो वर्ड है लेटिन वर्ड से टोरोनस से आया है, और उसका ग्रीक वर्ड में उसको टोरोनस बताया जाता है, जिसका मतलब है सर्कल. मीन्स अभी हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टू मूव अराउंड द सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस की, जैसे हम बोलते हैं एक्सिस पे, ये हम बोलते हैं कि जैसे पृथ्वी एक्सिस पे, ये हम बोलते हैं कि जो अर्थ एक्सिस पे घूमती रहती है, वैसे ही हम बोलते हैं कि घूमना, तो उसको हम बोलते हैं टू मूव अराउंड द सेंट्रल. One of the earliest definition of the tourism was given by the Australian economist Herman V. Scallard in the year 1910, who defined as the sum total of operators, mainly of the economic nature, which directly relate to the entry, stay, and the movement of the foreigners inside and outside the certain country, city or region. तो हरमन जो स्कडलर है, उन्होंने क्या बताया कि हम बोलते हैं कि जो कुछ ऑपरेटर हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक नेचर है,
यहाँ हम बोलते कि उसको डायरेक्टली कहाँ पे हम बोलते कि इकोनॉमिक नेचर को हम बोलते कि डायरेक्टली कहाँ से रिलेटेड मिलता है। इकोनॉमिक नेचर हमें कहाँ से मिलता है कि जैसे फॉरेनर हमारे यहाँ पे आते हैं, हम किसी के देश में जाते हैं, हम किसी के शहर में जाते हैं, दूसरे शहर के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोलते कि टू मूव अराउंड द सर्कल और एक्सिस, या हम बोलते कि इकोनॉमिक नेचर के लिए हमें ये दिखाई देता है। आगे देखते हैं। इन 1942 स्विस प्रोफेसर Hansi Karen Kraft defined the tourism as the tourism is the totality of the relationship and the phenomenon arising from the travel and stay of the stranger, and provided the stay does not imply the establishment of the permanent residence and is not connected with the remunerative activity। 1942 में जो स्विस प्रोफेसर हंसी क्राफ्ट है, उन्होंने टूरिज्म का डेफिनेशन क्या दिया है कि टूरिज्म हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एक घटना है जिसका संबंध है, जो बोलते कि मुसाफिरी, और उनको बोलते कि जो अनजान लोग होते हैं उनके साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए हम बोलते कि दे विल नॉट स्टे फॉर परमानेंटली फॉर पर्टिकुलर प्लेस, कि वो कहीं एक जगह पे नहीं रुकते हैं, इज नॉट कनेक्टेड विद द remunerative activity। In 1976, the Tourism Society of England's definition was tourism is the temporary, short-term movement of the people to the destination outside the places where they normally work and live their activities during the stay at each destination। It includes the movements of all the purposes। तो हर एक इंसान ने, हम बोलते कि इकोनॉमिक्स है, ये सब इकोनॉमिक्स है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से टूरिज्म का टूरिज्म को अपने डेफिनेशन टूरिज्म के अपनी डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि टूरिज्म कोई परमानेंट मूवमेंट नहीं है, पर टूरिज्म एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, थोड़े रहते हैं, अपने अपनी एक्टिविटीज करते हैं, अपने एक डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। Tourism is defined as the United Conferences on the International Travel and Tourism in Rome 1963 includes the business travel, that conventions, pilgrimages, and family gatherings and visit to the health space, as well as travel by the scientists and the vacationers। एंड तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि टूरिज्म को एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में देखा गया है कि जो है इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म जो रोम में हुआ था, उसको वहाँ पे बताया गया है कि ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो वहाँ पे जैसे बोलते हैं कि टूरिज्म किस किस बेस पर होता है, तो टूरिज्म जैसे बिजनेस ट्रैवल होता है, कन्वेंशन होता है, या पिलग्रिमेजेस हम बोलते हैं कि यात्राएं वगैरह होती है, या फैमिली गैदरिंग होता है, या हम बोलते हैं कि विजिट टू हेल्थ स्पेस, कहीं हम बोलते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमको बाहर जाना पड़ता है, और हम बोलते हैं कि वैकेशनल्स के लिए भी टूरिज्म बिठाया गया है। द टूरिज्म इज therefore the composite phenomenon which embrace which embraces the incidence of the mobile population of the travelers who are the strangers to the places they visit। It is essential a pleasure activity in which money earned is one's normal domicile is spent in the place visited। तो यहाँ पे टूरिज्म एक ऐसी हम बोलते कि फिनोमेना है कि जहाँ पे हम बोलते कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो ट्रैवलर्स होते हैं हुआ जो स्ट्रेंजर्स, दे विजिट द डिफरेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, कि जैसे हम बोलते हैं कि जीपीएस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये जो हम बोलते हैं कि जब ट्रैवलिंग होता है या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो एक रिफ्रेशमेंट होता है, एक प्लेजर होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि एक पैसा कमाने का जरिया है, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे हमारे दापोली में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल टूरिस्ट प्लेसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अरने हैं, मुरुड हैं, लाड़गढ़ हैं, अंजला है, दाभोर है, ये सब टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अगर कोई जो इंसान कभी उसने जैसे ग्रीनरी ना देखी हो, या हम बोलते हैं कि बीचेस ना देखे हों, तो बहुत से भी अच्छी बीचेस हमारे यहाँ पे दापोली में हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं।
Tourism is broadly understood with the help of three major aspects: leisure, pleasure, and recreation. So, leisure means use of free time for the enjoyment, pleasure means feeling of happy satisfaction and enjoyment, and recreation done for the enjoyment when one is not working. तो इसके ये थ्री एस्पेक्ट हैं वो टूरिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिसकी वजह से टूरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. Thus, the synoptic definition of the tourism could be travel for leisure, pleasure and recreation for the business purposes. तो इसके लिए टूरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. आगे बात करते हैं नेचर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टूरिज्म. अभी नेचर ऑफ टूरिज्म मतलब क्या? द टूरिज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज because of multi-facilitator activities which produce the tourist product. It has several subsections. It becomes a further complex when it has become promoted to the large scale, which would involve different types of the people, economy, land, attitudes, taste, expectation, etc. If it continues to be expanded more and more, new destinations have to be identified and it has become more and more organized. तो जब टूरिज्म को हम ऐसे देखा जाए या दूसरे पहलू से देखा जाए या दूसरी ओर से देखा जाए तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें हम बोलते हैं कि बहुत सारे मल्टी फैशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे काम में लग जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी फैसिलिटी प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं कि टूरिज्म के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो वो टूरिस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं और उसको हम बोलते हैं कि सब सेक्शन में उसको डाला जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें हर एक तरह के लोग वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विल बी देयर उन इकोनॉमी लैंड एटीट्यूड टेस्ट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं हमको वहाँ पे दिखाई देता है कि फॉर एग्जांपल एक होटल ओपन करने के लिए तो सिर्फ हम बोलते कि साउथ इंडियन जब हम बोलते कि यह ढाबा स्टाइल होता है तो जो हम बोलते कि ढाबे पे हमें सिर्फ छोले या भटूरे या ऐसा नहीं दिखाई देंगे लेकिन हर टाइप का फूड हमको ढाबे पे अभी दिखाई देता है या फॉर एग्जांपल होटल में भी जब हम जाते हैं तो मल्टीपल फूड हमको वहाँ पे दिखाई देता है. आगे देखते हैं द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द टूरिज्म implies that many disciplines are involved in the study like geography, economic and sociology. आगे बात करते हैं जियोग्राफर्स आर मेनली कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन द स्पेशल पैटर्न ऑफ द टूरिस्ट एक्टिविटीज द प्रोसेस ऑफ स्पेशल स्प्रेड ऑफ टूरिज्म and their development at the local, regional, national and international scale. They study about the people who are tourists, why they travel, where they travel, and what is the impact of the destination area, and what are the benefits and the cost of development tourism. तो जियोग्राफिकल हम बोलते कि जियोग्राफी वहाँ पे कंसर्न है तो जियोग्राफर्स क्या करते हैं द जियोग्राफर्स हमको स्पेशल पैटर्न ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ की दिखाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पर्टिकुलर प्लेस पे हमें जाना हो या पर्टिकुलर प्लेस को हम जब डिसाइड करते हैं तो उसका हम बोलते हैं कि उसकी लोकल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है या रीजनल लेवल पे है या इंटरनेशनल स्केल पे है उसका स्टडी किया जाता है. कौन है कहाँ पे जाते हैं क्यों जाते हैं तो उसका डेस्टिनेशन एरिया कहाँ है कि फॉर एग्जांपल जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो उसका प्लेस हम डिसाइड करते हैं तो हर एक का जैसे हम बोलते हैं घर में बैठ के हम जब उसको डिस्कस करते होते हैं तो हर एक का ओपिनियन अलग अलग आता है तो उसके लिए जब आप प्लेस सिलेक्ट करते हो तो उसका कहीं ना कहीं कंसर्न उसका जियोग्राफी से है या हम बोलते हैं कि प्लेजर से है या स्कोप से है रिसोर्सेज से उसका जुड़ा हुआ है. Then economic are concerned with the contribution to the economy and economic development of the destination area. तो इकोनॉमिक कौन सी बात करते हैं कि उससे जुड़े हुए इकोनॉमी की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि वो डेस्टिनेशन एरिया है उसका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कितना हुआ है. अगर आप कोई प्लेस पसंद करते हो तो उसका फॉर एग्जांपल हम ही कहीं घर के बाहर हम जब घूमने जाते हैं उसको प्लेस को डिसाइड करते हैं तो वहाँ जब हम वहाँ पे ठहरने वाले हैं तो उसका पर पर्सन रेट कितना होगा होटल का रेट कितना होगा 2 दिन रुकने वाले 1 दिन रुकने वाले 3 दिन रुकने वाले उसका खर्चा कितना होगा ये हम पहले बजट तैयार करते हैं. एंड ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मेक द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. तो वहाँ पे पेमेंट हम बोलते हैं कि इकोनॉमी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है
वहाँ ऐसे दिखाई देता है। Then sociologists and anthropologists are interested in the behavior of the individual or group who are traveling. They focus on their habits, customs, tradition, lifestyle, both host and guest. तो हम बोलते हैं जैसे सोशलिस्ट है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो वो ज़्यादातर जो हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हो या ग्रुप में लोग आए हों जो ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनकी आदतें, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लाइफस्टाइल कैसे, वो दोनों तरीके से उनको सराहते हैं, उनको जांच करते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ टूरिज्म। Scope of tourism. The scope of tourist industry is vast. It includes all the sector of economy and may be governed by the public sector and the private sector in the coherence. It is supported by the sector like transportation and telecommunication, financial sector and education sector at a large scale. It is highly labor intensive industry and thus research and development and human resource activities from the major component of the industry. तो स्कोप ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स उसका हम बोलते हैं कि उसका स्कोप क्या है, कि पहले इतना टूरिज्म डेवलप नहीं था, लेकिन आज मीन्स 20-25 सालों में हम बोलते हैं कि टूरिज्म ज़्यादा डेवलप हुआ है, एक वास्ट इंडस्ट्रीज की तरह दिखा देता है। तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम बोलते कि सेक्टर्स लाइक जैसे बोलते कि ट्रांसपोर्टेशन हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या फाइनेंशियल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, वो कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ टूरिज्म में जुड़े हुए हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ाई की बात करते हैं या हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में हमें बताया जाता है, जिससे हमें अंदर उसमें रुचि पैदा होती है, वहाँ पे हमें जाने की इच्छा होती है, वो कैसा दिखता है कैसा नहीं, ये हमें हम उसका आनंद ले सके, उसके लिए हम उसको डिसाइड करते हैं। दूसरा है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग भी होना चाहिए, यह आपको बताए जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि अगर किसी प्लेस पे आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की सुविधाएं हैं कि नहीं, टेली कम्युनिकेशन से आप पूछ सकते हैं कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम कहीं होटल में रुकने वाले हैं, तो उसका डेस्टिनेशन आप डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन आप कितने दिन होटल के रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं, इसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन तो बाय कार या बोलते कि बाय लग्जरी बस या वगैरह वगैरह, जो ट्रैवल्स की बस होते हैं, उससे भी आप जा सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग। With increasing demand, with increasing demand for international and national tourism, the need to discover or invent new destinations and ideas of tourism also increasing. Thus, the newer forms of tourism are being added every day to existing lists. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे टूरिज्म की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसको ढूंढने के लिए नए नए डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए जो हम बोलते हैं कि जो टूरिज्म के जो आइडियाज लगते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और जैसे अभी देखते हैं फॉर एग्जांपल slum tourism in Mumbai. Many foreigners, tourists belonging to the affluent and the rich countries of the world visit India every year. There is an increasing trend of visiting slum areas of India, especially Mumbai, to experience the unique slum culture in the country. This is more prominent in the Mumbai because of presence of Dharavi slum, which is Asia's largest slum that has gained popularity through the cinema and other media. Movies like Slumdog and Millionaire and Bhutnath Returns have contributed to its popularity. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे आपको पता है कि जैसे टूरिज्म के लिए इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे उसकी डिमांड बढ़े, उसके साथ साथ उसके डेस्टिनेशन, नए नए डेस्टिनेशन भी वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, और उसके लिए जो टूरिज्म के जो आइडियाज है वो भी बढ़े। तो यहाँ पे एक उसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि धारावी स्लम एरिया, ये जो धारावी स्लम है या झोपड़पट्टी है, वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, जहाँ पे हर साल जो फॉरेन टूरिस्टर होते हैं या जो हम बोलते हैं कि बड़े बड़े देश से आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये
स्लम एरिया की विजिट लेते हैं कि उसका कल्चर कैसा है, लोग किस तरह से रहे, उसको किस तरह से जी रहे, कि वो ऑब्जर्व करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं कि एक्चुअली हम तो बाकी के लोग तो स्लम एरिया में जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे विजिट कर पर्टिकुलर उस इस डेस्टिनेशन के लिए विजिट करते हैं। जैसे उसका महत्व हम बोलते हैं कि धारावाहिक का महत्व है, जैसे बोलते स्लम डॉग मिलियनेयर और हम बोलते हैं भूतनाथ रिटर्न्स, ये फिल्म थ्रू हमें ज़्यादा दिखाई, उसकी पॉपुलैरिटी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वजह से फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं। आगे देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म। The tourism is an important, even the vital source of income for many regions and countries. Its importance was recognized in the Manila Declaration on the World Tourism of 1980 as an activity essential to the life of nations because of its direct effects on the social, economic, culture, and education sector of the national societies and on the international relations. तो टूरिज्म कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि जब टूरिज्म की बात निकलती है, टूरिज्म कहीं ना कहीं उसके सोर्सेस हम बोलते हैं कि सोर्स फॉर इनकम मैनी रीजन्स और कंट्रीज, तो उसके लिए देश में बहुत सारे हम बोलते हैं कि प्लेसेस है या रीजन्स है जो टूरिज्म के लिए एक इनकम का सोर्स खड़ा कर देते हैं। बिकॉज उसको किस तरह से इसको किस तरह से जाना जाता है कि मनीला डिक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड टूरिज्म, मनीला डिक्लेरेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑफ 1980, उसको देखा जाता है कि जो हम बोलते हैं कि सोशल लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, कल्चरल कैसा है, एजुकेशन सेक्टर कौन सा है, नेशनल सोसाइटीज़ को लेकर इंटरनेशनल रिलेशन कैसे है, उस पर वो डिपेंड रहता है। Then tourism brings a large amount of the income to the local economy in the form of payment for goods and services needed by the tourists, and accounting the 30% of world trade of services and the 6% of all over export of the goods and services. तो टूरिज्म सिर्फ हम बोलते हैं कि प्लेसेस और रिलीजन से न जुड़ते हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक लोकल इकोनॉमी में भी उसका बढ़ावा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जितना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए उतना गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो बोलते हैं कि वर्ल्ड के हम बोलते हैं 30% ट्रेड और सर्विसेज में उसमें इंक्लूड किया जाता है, और 6% है वो ऑल ओवर एक्सपोर्ट में हम बोलते हैं कि जितना भी ऑल ओवर एक्सपोर्ट हम बोलते हैं कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसमें 6% इंक्लूड किया जाता है। आगे देखते हैं इट ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। It also creates the opportunities for employment in the service sector for the economy associated with the tourism. The service industries which benefit from the tourism include transportation services such as airlines, cruise ships, taxi cabs, hospitality services such as accommodation including hotels and resorts, and entertainment facilities such as amusement parks, casinos, uh, casinos and shopping malls, music venue and theatre. This is in addition to the goods bought by the tourists and including souvenirs and clothing and other supplies. तो टूरिज्म में हम बोलते हैं कि कौन से जैसे सर्विसेज हमको इम्पोर्टेंट कौन से सर्विसेज जो टूरिज्म में इंक्लूड किए गए हैं। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइंस है, क्रूज़ है, शिप्स हैं, टैक्सी कैब्स हैं, तो ये उसमें इंक्लूड किया जाता है। और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, तो हॉस्पिटलिटी सर्विसेज में जैसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एकोमोडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल होटल्स एंड रिसोर्ट हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क है, कैसिनोज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, म्यूजिक वेंचर्स हैं, म्यूजिक वेन्यूज हैं या थिएटर्स हैं। सो all these sectors, they are related for tourism. They are just giving the facilities to you, they are just giving that entertainment to you also, and they are giving that leisure to you also, and they are earning also. So this is in addition to the goods by bought by tourists including souvenirs, clothing and other supplies. तो जब हम उसकी बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो टूरिज्म को लगने वाली जितनी भी हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है वो खरीदी करते हैं टूरिस्ट,
और उसको सप्लाई करने का काम टूरिस्ट प्लेसेस करते हैं। अभी हम देखते हैं आगे टाइपोलॉजी ऑफ द टूरिज्म क्लासिफिकेशन। तो टूरिज्म को हम बोलते हैं कि 3 पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो डोमेस्टिक टूरिज्म, देन इनबाउंड टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो उसकी बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल domestic tourism, it involves the visiting tourist destination within the country of the residents. For example, the citizen of India visiting tourist destination of India. तो डोमेस्टिक टूरिज्म किसको बोलते हैं कि जो डेस्टिनेशन सिर्फ हमारे कंट्री में आया है, जब उसको विजिट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म बोलते हैं। और वही डेस्टिनेशन वो हम लोग पसंद करते हैं। देन इनबाउंड टूरिज्म, इट इन्वॉल्व्स द टूरिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री where none of the country is resident country. For example, citizen of India going on the world tour where they travel from one to another country besides India. कि इनबाउंड टूरिज्म हम उसको बोलते हैं कि मीन्स एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि वहाँ पे रुकने वाले नहीं रुकने वाली रेसिडेंस वाली कंट्री नहीं है, लेकिन आप एक जगह से वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ हम घूमने वाले हैं, वहाँ पे स्थायी स्वरूप में या हम बोलते हैं कि परमानेंट रेसिडेंट के तौर पे आप वहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। अब हम आगे बात करते हैं आउटबाउंड टूरिज्म। तो आउटबाउंड टूरिज्म मतलब क्या? इट इन्वॉल्व द टूरिज्म टू अदर कंट्री besides residing the country. For example, the residents of the India visiting Dubai. तो आउटबाउंड कंट्री के लिए हम बोलते हैं कि आउटबाउंड टूरिज्म कि हम बोलते हैं कि जिसे बोलते हैं कि बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, या हम बोलते हैं कि रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विजिटिंग दुबई। कि हम बोलते हैं कि जो दुबई के मीन्स जो इंडिया के लोग हैं वो दुबई में जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि आउटबाउंड कंट्री, आउटबाउंड टूरिज्म। आगे देखिए यहाँ पे then next point is classification on the basis of region. All about the forms of tourism can be combined to form three more types of tourism: internal tourism, national tourism, and international tourism. Internal tourism, which involves the movement within the country and is combination of the domestic tourism and inbound tourism. तो जब हम इंटरनल टूरिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें डोमेस्टिक टूरिज्म और इनबाउंड टूरिज्म उसका इंक्लूड किया गया है। जब हम नेशनल टूरिज्म की बात करते हैं, नेशनल टूरिज्म विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट बिटवीन द कंट्रीज एंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक टूरिज्म एंड आउटबाउंड टूरिज्म। तो नेशनल टूरिज्म की हम जब बात करते हैं तो उसमें एक देश में से दूसरे देश में जाना, और हम बोलते हैं कि उसमें डोमेस्टिक टूरिज्म मीन्स एक प्रदेश में से दूसरे प्रदेश में जाना, और आउटबाउंड टूरिज्म की बात किया जाता है। और इंटरनेशनल टूरिज्म which involves the tourism within the countries but is a combination of inbound tourism and outbound tourism. तो इंटरनेशनल टूरिज्म में इनबाउंड टूरिज्म मीन्स एक देश से दूसरी ओर पे जहाँ पे रेसिडेंसी परमानेंसी नहीं होती, और हम बोलते हैं कि आउटबाउंड टूरिज्म मीन्स इंडिया के लोग जब दुबई में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आउटबाउंड टूरिज्म। तो ये उसको इंक्लूड किया गया है। अभी हम आगे बात करते हैं the classification on the basis of the purposes. Recently, many new types of the tourism based on the purpose of the travel and traveling have evolved. The list is executive, however, the following are some of the prominent and the types of tourism. Ecotourism. Ecotourism, traveling to preserve and undisturbed landscapes, on the earth is and the ecotourism. It includes all the places which are risky to the life but extremely beautiful to visit. Visit to the large waterfalls, high mountains, even going to the deeper in the oceans is a part of ecotourism. In Indian context, it also involves the nurturing the tourism sports is an eco-friendly manner. The ecotourism किसको बोलते हैं? तो traveling to preserve and undisturbed landscape मीन्स हम बोलते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं कि जो प्लेसेस हम बोलते हैं थोड़े से रिस्की होते हैं पर
वो उसको हम बोलते हैं कि विजिट करने के बाद जो हमें उसकी ब्यूटी महसूस होती है तो उसको हम इको टूरिज्म बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े वाटरफॉल हो या माउंटेन हो या गोइंग डीपर इनटू द ओशन, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इको टूरिज्म प्लेसेस। तो उसको हम बोलते हैं इको टूरिज्म स्पोर्ट्स को इको फ्रेंडली मैनर भी माना जाता है। Hence, the botanical gardens and zoology gardens are considered as a site of ecotourism there. तो उसको बॉटनिकल गार्डन को जूलॉजी गार्डन को इको टूरिज्म में उसको देखा गया है। आगे देखते हैं रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म मतलब क्या? तो अभी ये नाम सुन के ही आपको थोड़ा सा अंदाजा या थोड़ा सा हम बोलते कि इमेज थोड़ा सा समझ में आता है कि रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताएं, विजिट टू द रिलीजियस प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, होली लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप टू होली केव्स ऑफ अमरनाथ, गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, मिक्का, मदीना एक्सेट्रा। तो जब उसको हम बोलते कि जब हम कोई भी रिलीजियस प्लेसेस के लिए हम विजिट करते हैं, जो हम बोलते कि जहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती है, जहाँ पे हम बोलते कि होली प्लेसेस है, होली लोकेशन है, तो उसको हम बोलते कि रिलीजियस टूरिज्म में उसको इंक्लूड किया गया है। अ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे अमरनाथ की यात्रा या अमरनाथ के, हाँ, गुफाएं, क्या बोलते हैं गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का सबसे फेमस है, मिक्का मदीना, हाँ तो ये है। हाँ ये एक प्लेसेस है, तो जिसको हम रिलीजियस प्लेसेस में, रिलीजियस टूरिज्म में डालते हैं। देन आगे बात करते हैं एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म। Travel for the purpose of experiencing adventure. It also involves trekking, adventure sports, etc. For example, trip to Uttarakhand may include sports of adventure tourism like river crafting, पैराग्लाइडिंग, रिवर क्रॉसिंग एंड ट्रैकिंग एक्सेट्रा। तो जहाँ पे स्पोर्ट्स मीन्स हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स एडवेंचर मीन्स जहाँ पे आपको साहसी ऐसे स्पोर्ट्स जो प्लेसेस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रैवल के लिए जो हम बोलते हैं कि एडवेंचर करना है, तो उसको हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स टूरिज्म उसको बोलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी नदियाँ आई हुई हैं, तो उसमें बोलते हैं कि रिवर क्राफ्टिंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, रिवर क्रॉसिंग करना और ट्रैकिंग करना, तो ये हम बोलते हैं कि उसको हम ये बता सकते हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म की टॉपिक को उसको इंक्लूड किया गया है कि जो करने में आपको साहस मिलता हो, जिससे करने में आपको थोड़ा सा डर भी हो, लेकिन आपका डर करने के बाद निकल जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म।